Assalamu alaikum to all the viewers and my wonderful participants of Rehan AI Teachers Institute Teacher Training Bootcamp for 2 months. Myself, Mariam Zulfikar, training wali, working as Vice Principal at Rehan School Online Academy and Facilitator at Rehan AI Teachers Institute Teacher Training Bootcamp for 2 months. Tonight is 22nd August 2025. The time is 11 minutes past 9 p.m. UTC plus 5 according to Pakistan Standard Time. I welcome all of you in today's class as today is the second last weekend of our class and this seventh week of our class and this bootcamp will be completed for today. So we have just a week now. So please complete your all the task and whatever you facing any kind of a challenges, please let me know so that we can fix it and we can figure out some other ways to accomplish the goal and complete all the tasks that we have to complete within this 8 weeks. So thank you so very much for this wonderful journey and I hope you learned little bit things from this and you will implement in your life later on. So let's practice the meditation first, and then we'll start our day with a very positive note. Class on a very positive note. Ji, Mr. Rahat, please play the meditation video. Thank you. Thank you. मेरे दिमाग में हर वक्त Hey there, and thanks for gifting yourself these next few minutes. It's important to remember that you're a priority, and allowing yourself even just a few short minutes of intentional reflection can really have a positive impact on the rest of your day. So let's use these next few minutes to come back to center and set an intention for the rest of your day. Move into a comfortable position, whether you're seated at your desk at work or laying on the couch at home, and gently close your eyes and shift all of your attention onto your breathing, taking slower, deeper breaths than you've taken all day so far. Taking a deep breath in through your nose and slowly letting it out through your mouth. And continuing to breathe that way, feeling your lungs expand out as you inhale and contract back in as you exhale. Tune into your body, noticing how it feels. Noticing if there's anything that it's trying to tell you. Notice any place of tension or tightness in your body. Give those areas permission to relax, sending love into those areas. Thank your body for taking such good care of you, and let it know that it's okay to rest and relax for these next few minutes. You may notice that your mind starts to wander off. That's okay. That's natural. Just notice it and bring your attention back to your body, using your breath as your anchor. Try to picture one thing that's happened today that's made you smile, or made you thankful or appreciative. And just let that feeling fill you up for a moment. Breathe that feeling in from the top of your head to the tips of your toes. And allow yourself to smile if that feels natural. Now focus on something that you can do today, whether it's for yourself or for someone else, that will allow you to continue feeling this way. It could be something as small as deciding to go to bed early tonight, so that you have time to finally read that book that's been on your bedside table. Or the joy of getting dinner with a close friend. What's one little thing you can plan for your day to bring that intentional joy to it? Now just focus on that for a few minutes. Sit in that feeling of joy and peace.
let's take a few more deep breaths together. A deep breath in, feeling your lungs expand out as you inhale, and everything contract back in as you exhale. Again, an even deeper breath than the one before it, holding that breath for a beat, and exhaling everything out. Last time, your deepest breath yet, sending that breath through your entire body. And exhale it out. And in your own time, slowly bring your awareness back to where you are. And thank yourself for taking these few minutes to just be intentional and kind to yourself. And when you're ready, you can gently open your eyes and enjoy the rest of your day. Okay, participants, thank you so very much for practicing this meditation video. First of all, I'll let you know about your yesterday's challenge or any query, any question. कल के कोई भी सवाल हो, कोई चैलेंज हो, कोई आपका प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ वो बताइए जो कि अभी तक एड्रेस नहीं हुआ. Yes, anyone? Everything is going good. Good to know. Okay, let's move towards today's task. आज के टास्क में आपके पास 5 टास्क हैं जिनमें एक आपकी TEDx टॉक है और कोडिंग विद एआई का टास्क है जिसमें हमें आज रिमाइंडर ऐप बनानी है. इंटरव्यू का टास्क है और 2 आपके एआई सेशंस हैं जो कि हम डे टू डे बेस पे रोज़ाना ही करते हैं ऑलमोस्ट. हम सबसे पहले कोडिंग का टास्क कंप्लीट कर लेते हैं जिसमें रिमाइंडर ऐप बनाते हैं और मैंने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिए हैं. जूम चैट में भी मैंने कोडिंग का टास्क शेयर कर दिया है. सो जस्ट कंप्लीट योर कोडिंग टास्क. आप सब अपना पहले कोडिंग का टास्क कंप्लीट कर लें और इसको पोस्ट कर लें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक और लिंक्डइन पे. एंड देन विल मूव टूवर्ड्स अ TEDx टॉक. फिर हम TEDx टॉक देखते हैं सब. Okay. ओके जी. मिस्टर वेरिया, कराची के हालात कुछ बेहतर हुए? अब आपकी साइड पे क्या मौसम है, क्या हाल चाल है कराची के? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम थैंक्स अस्सलाम. फॉर कैसी हैं आस्किंग. आप? ठीक हूँ, अम्मी की तरफ हूँ. और हमारा एक्चुअली कुछ मसला एरिया में कुछ ऐसा हुआ था हमारे एरिया में कि वहाँ क्योंकि इलेक्ट्रिक था. अभी कल उन्होंने बताया कि उनको एक्चुअली इशू नहीं समझ में आ रहा कि वो है क्या. उन्होंने कहते हैं कि जब बारिश ख़त्म होती है तो उसके बाद हम चेक करेंगे. तो ऑलमोस्ट आज 4th डे है और हमारे एरिया में लाइट नहीं है वहाँ पे, जो आगे आगे पीछे है, लेकिन वहाँ ये थोड़ा इशू है. तो मैं अम्मी की तरफ अपनी आई हूँ, तो यहाँ से फिर आज क्लास ले रही हूँ. ओके ओके, गॉट. अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे क्योंकि वहाँ पे आमीन. हालात काफ़ी थोड़े से बहुत इस बहुत तरह के हुए हैं बारिश की वजह से. तो बस परेशानी है बिल्कुल. थोड़ी. बट अल्लाह ताला अल्लाह सबको हम अपनी सब पे रहम हिफ्ज़-ओ-अमान में करे. रखे. आमीन. जी बिल्कुल. चलें जी. राहत आपी, आपकी तरफ अब कुछ बेहतर हुआ? हाँ जी, कुरंगी में तो बेहतर ही है, बस ज़रा बहादुराबाद चुरंगी की तरफ जाएँ तो रास्ते का इशू है, पानी वगैरह, रोड सही. खराब है.
सही सही सही, ठीक ठीक ठीक, बस. Okay, participants, Ms. Iram has shared the attendance in the chair, so please mark your attendance. अस्सलाम वालेकुम नसीमुल्लाह भाई, कैसे हैं आप? अब आपकी तबीयत कैसी है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, that's good, good to know. बस आप रेस्ट करें अच्छा सा, ताकि आपकी तबीयत ठीक हो. सही हो गया. सुलेमान भाई, आपका टास्क हो गया? मेरा तो कोड पेन नहीं चल रहा. अरे मिस इरम, आपके कोड पेन को क्या हुआ? पता नहीं यस वो मेरी भी क्या. घूम रहा है अभी जरा ठीक हुआ है ट्राई करके दोबारा अच्छा। शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम हो इस वजह से. आप दोबारा से चेक करें अपने इंटरनेट और का कनेक्शन, या उसको दोबारा ट्राई करें. अब एक बार बंद करके लिंक को फिर ऑन करें तो बेहतर हो जाएगा. हो गया ठीक, चलें जी, गुड हो गया. ओके. पता नहीं अब और कौन कौन से मैसेज आए हुए हैं. मेल किसकी होगी? खेल. मिस इरम, ये आपने जो लाइव सेशन एग्जिट टिकट क्या शेयर किया, जरा बताएंगे प्लीज? ये मैंने ना वो जो अटेंडेंस होती है ना गूगल शीट की, वो शेयर किया, आप उस पर क्लिक करके अटेंडेंस मार्क कर सकते अच्छा, मुस्लिम सेंटर, जी मुस्लिम सेंटर. ओके. टास्क डन, प्रोसीडिंग टू फेसबुक एंड लिंक्डइन. ओके जी आसिफ भाई, गुड.
इसमें तो टास्क नंबर 20 है, 20 है ना जी टास्क जी नंबर। जी जी, ये टास्क नंबर 20 है. वी हैव जस्ट 5 टास्क मोर. मिस मरियम नीड 5 मिनट ब्रेक. जी जी मिस लुबना, यू कैन टेक. Task done, task done, done. Okay. Okay, participants. Meerab. अच्छा. Meerab and Ishal, have you completed your task? Ishal का हो गया ज़बरदस्त. So Meerab, what about you? शफीक भाई, आप भी बता दें आपका टास्क कंप्लीट हो गया. मिस सोलत, आपका टास्क कंप्लीट हो गया. मिस सोलत. मैम मेरी तरफ ज़रा नेट स्लो चल रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं अभी करके टास्क कंप्लीट करके मैं बता देता हूँ अभी. चलें ठीक है. ओके. मैम जी जी मीरब. टीचर इंटरनेट नहीं है यहाँ पे इस वक्त सही चल रहा, इस वजह से थोड़ा स्लो हो रहा है, तो जैसे ही ठीक कंप्लीट है, होता है मैं फिर बता देती हूँ. ठीक हो गया. मिस लैला, आप बताएंगी आपका कोडिंग का टास्क कंप्लीट हो गया? मिस लैला. मिस लैला, आप हैं क्लास में? जी जी मैम, बिल्कुल मैं हूँ पढ़ी. मैम मेरे से ना वो स्क्रीन छोटी हो गई थी और वो ना बड़ी नहीं हो रही थी, तो मैं उसी से छेड़छाड़ कर रही थी कि मैं इसको स्टेबल कर लूँ. जी मैम. जी, मैंने पूछा आपका टास्क कंप्लीट हो गया कोडिंग का? मैम मेरे कोडिंग के हो चुके हैं, इसीलिए मैं कुछ और कर रही थी इसी टास्क से रिलेटेड दूसरा काम. जी सही हो गया. पार्टिसिपेंट्स, इट्स 9:30, सो लेट्स वॉच द टेड टॉक. और आज की टेड टॉक जो है वो 17 मिनट 7 सेकंड का. इट मीन्स आई विल गिव यू 20 मिनट्स. सो यू गाइज बी बैक एट 9:50. फिर हम अपने टेडेक्स के रिव्यूज़ एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे. मैंने व्हाट्सएप पे भी लिंक शेयर कर दिया है और मैं जूम पे भी शेयर कर रही हूँ ताकि आप सब टेडेक्स देखें और फिर हम उसके रिव्यूज़ शेयर करें. And today's TEDx topic is really important as a teacher. How to fix a broken school. Lead fearlessly. Love hard by Linda Kellett. Let's watch this TED talk. Okay. एक्सक्यूज मी मैम, ये अभी यहाँ देखनी है कि अलग सेपरेटली देख लीव कर दें क्लास? इंडिपेंडेंट देख लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा. चलो ठीक है. ठीक है, थैंक यू.
Okay, participants, please turn on your cameras. Let's share our reviews regarding our TED Talk. आसिफ भाई, सुलेमान अहमद, इशाल, Miss Solat, Meerab, Miss Gulshan, please turn on your cameras. Thank you. सुलेमान, अपना कैमरा ऑन कर दें. सोलत अपना कैमरा ऑन कीजिएगा. Umeer was one of the best. So, okay, that's good. जी मिस लैला, क्या सीखा आज की टेड टॉक से, क्या समझ में आया? जी मैम. फातिमा, Linda cleared women's TEDx talk. Linda cleared women's TEDx talk. How to fix a broken school. Lead fearlessly, love hard, is powerful and heartfelt. She shows that true leadership means taking responsibility, refusing excuses, and acting with courage. Her mantra, so what, know what, turns challenges into action, and her daily reminder of love gives student hope. It's a talk about leadership, resilience, and the power of love in transforming lives. Thank you, ma'am. Thank you so very much. Thank you, Miss Lala. जी, अहमद मुस्तफ़ा भाई. बेसिकली तो उन्होंने एक अमेरिकन स्कूल के जो फिलाडेल्फिया के शहर में था उसका बताया कि उस स्कूल में वायलेंस बहुत कॉमन था। और ये फैक्ट भी है कि जो अमेरिकन बच्चे हैं उनमें से 1/3 बच्चा लाजमी बुली होता है अपने स्टडी जो पीरियड होता है उसके अंदर। तो वो काफ़ी उसकी वो प्रिंसिपल बनी थी इस स्कूल की। तो उन्होंने काफ़ी परेशान हुई वो शुरू में कि ये कैसा इन्वायरमेंट है। तो उन्होंने स्ट्रिक्ट यहाँ पर लॉज बनाए। स्टार्टिंग में ही उन्होंने डायरेक्ट सस्पेंड करना शुरू कर दिया उन बच्चों को बगैर देखे। तो बच्चे काफ़ी डर गए थे कि डायरेक्ट सस्पेंड हो रहे हैं। तो स्ट्रिक्टनेस भी उन्होंने की और साथ उन्हें लव एंड केयर भी दिया, मतलब उनकी काउंसलिंग भी करी थी और उनको बता भी दी थी कि वो उनको पसंद करती हैं और प्यार करती हैं। तो इन द एंड उनका मेन मोटिव यही था कि जो लीडरशिप होता है उसका मकसद सिर्फ कंट्रोल करना नहीं होता, उसका मकसद जिम्मेदारी उठाना होता है और केयर करना होता है। थैंक यू। जबरदस्त. थैंक यू अहमद मुस्तफ़ा भाई. जी मिस लबना. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम ये जो अस्सलाम. स्पीकर हैं ये प्रिंसिपल रही हैं, जितना भी टाइम इनका प्रिंसिपलशिप में रहा है, तो ये ब्रोकन स्कूल्स को डील करती रही हैं और इनको इसका स्पेशलिस्ट भी माना जाता है। जिस स्कूल का ये अपना तज्जिया बता रही हैं उसमें एक तो ये जो अहमद भाई ने बताया बिल्कुल वो वही बात है कि वहाँ पे उन्होंने अपने रूल्स इम्प्लीमेंट करवाए। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अपने 3 स्लोगन्स पे काम करती थी। इफ यू आर गोइंग टू लीड, लीड। और फिर सो व्हाट, नाउ व्हाट, एंड इफ नोबडी टोल्ड यू दे लव्ड यू टू टुडे, रिमेम्बर आई डू। तो ये इन 3 स्लोगन्स पे वो काम करती थी। फिर उन्होंने कहा कि जब बच्चे को हम चेक करते हैं एकेडमिकली वो ठीक क्यों नहीं हो रहा, तो बेसिकली हमें उसकी बेस को जानना चाहिए कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या है या वो किस फैमिली बैकग्राउंड से आता है। तो वो जानने के लिए मैंने बच्चों के साथ मैं डेली बेसिस पे लंच करती थी। उनके बर्थडेज में सॉन्ग जो है वो गाती थी। हालांकि मेरी सिंगिंग कोई अच्छी नहीं थी, लेकिन बच्चे चाहते थे कि हमें स्पेशल फील करवाया जाए, जिसकी वजह से मैं गाते मतलब आई सिंग। तो बड़ी इमोशनल सी टॉक है। उन्होंने इस बारे में बताया कि लीडरशिप जो है वो फियरलेस होनी चाहिए। जो भी आपको सख्त डिसीजन लेने पड़ते हैं बच्चों के बेटरमेंट के लिए वो लेना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैंने लिए अकाउंटेबिलिटी की, जिसके बाद स्टाफ की भी और स्टूडेंट्स की दोनों, क्योंकि जो फेलियर है वो वहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स की वजह से नहीं आता, रूल्स एंड रेगुलेशंस ना होने की वजह से आता है। तो ये एक बड़ी अच्छी टेड टॉक रही है। थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू. जी शाल ज़रा. जी मैम, ये वाकई में बहुत अच्छी थी। तो इसमें इन्होंने ये बताया कि एक ब्रोकन स्कूल को फिक्स करना आसान नहीं होता। ये इट कैन बी डन विद अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड रियल लव फॉर द स्टूडेंट्स। और इस टॉक में इन्होंने 3 सिंपल रूल्स बताए, लाइक
lead with a vision, consistency और never underestimate the students. So इनकी टॉप से यही जाहिर होता है, यही मैसेज है कि अगर एक टीचर अपने स्टूडेंट्स पर ट्रस्ट करेंगे या उनके साथ फेयर रूल्स लेके चलेंगे और कभी उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे तो एक जो टफर स्कूल है वो भी चेंज हो सकता है। जबरदस्त। जी मिस गुलशान, क्या सीखा आज की टेड टॉक से आपने? मैम अगर आपकी परमिशन हो मैं आज अपना लिंक्डइन पे टास्क पोस्ट जी कर जी लूँ? जी आप कर लें। जी मिस गुलशान। आज की जो टेडेक्स टॉक है इसमें जो पहली चीज ये जो खातून है ना, इनकी टोन, इनका एक्सेंट, वो पहले नंबर पे तो ये शो करता है कि ये बड़ी डाढ़ी सी औरत है। जिस तरह उनका एक्सेंट है, जो उनका स्टाइल है बात करने का, इस तरह से मतलब ये उन लोगों में से हैं जो कि मैन ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं। यही होती है ना, जिनकी अपनी एक एक विजनरी होती है, वो उसी पे चलते हैं। खातून बेसिकली इमोशनल हैं, लेकिन देखने में वो कुछ सख्त भी लगती हैं। जो ये मुझे लगी हैं वो खातून ना, देखने में कुछ कुछ डैडी किस्म की भी लगी हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि अगर आप यहाँ, फिलाडेल्फिया का स्कूल है शायद वो, जो एक पसमानदा सा स्कूल है जहाँ वो गई हैं, और उन्होंने उसको देखा है और चीज़ों को जज करने के बाद फिर उन्होंने वो इंस्ट्रक्शन का एक वो भी सेट किया है जिसके बेसिस पे वो काम कर सकें। फिर उन्होंने जो कोर पॉइंट दिया हमें वो ये दिया कि अगर आप प्रिंसिपल है ना किसी जगह के, या आपने आपने वहाँ पे लीड करना है, तो आपको तीन चीजों को अपनी जिंदगी का हासिल बना लेना चाहिए। एक तो ये कि आप प्रिंसिपल हैं तो आपने लीड ही करना है। दूसरा, सो व्हाट नो व्हाट, अगर आपने करना है तो फिर आपने बहाने छोड़ देने हैं, फिर कोई बहानेबाजी नहीं। जब आपने ही करना है फिर उसको करना है, फिर उसके लिए जो अगर मगर जो है ना, ये इन चीजों को आपने खत्म कर देना है। और तीसरी बात ये उन्होंने कहा कि बच्चे जो है ना वो अफेक्शन मांगते हैं। मुझे तो यही समझ आया है कि बच्चे जो हैं उनको मोहब्बत की जरूरत है, उनको बताना पड़ता है कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं। तो एक हिसाब से बड़ी अच्छी ये टेडेक्स टॉक है कि इसमें हमें मतलब ये कोई इस तरह, ये एक ट्रेडिशनल सा सिस्टम है जो बिल्कुल ब्रोकन है, और उसको उन्होंने उसको इम्प्रूव किया है। और ऐसे बहुत सारे जो स्कूल्स हैं वो तो हमारे इर्द गिर्द बिखरे पड़े हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटी की टेडेक्स टॉक है। थैंक यू। थैंक यू मिस गुलशान। जी मिस सीरम। हाँ जी, बहुत अच्छी टेड टॉक थी ये। इसमें जो स्पीकर थी वो बड़ी पावरफुल थी, तो वो ये बता रही थी कि पावर इज पावर एंड नॉलेज इज पावर। तो उसने जो है अपनी सारी एनर्जी लगा दी कि जो भी मसाइल थे उसके अलावा इमोशनली भी, और उसने अपने रूल्स की वो स्लोगन्स की औरत थी तो उन्होंने बहुत केयर की और पॉवर्टी को बड़ा डिस्कस किया। फिर उसने ये पाया कि जो मैं खुद इस ही माहौल का हिस्सा हूँ और इसलिए मैं लोगों को ज़्यादा जल्दी समझ सकती हूँ और उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। फिर जैसे कि इतना कॉम्प्लिकेटेड स्कूल था, वेपन्स थे वहाँ पर, रिजल्ट्स थे, बहुत सारे मसले मसाइल थे, लेकिन वो स्टिक रही और स्ट्रॉन्ग रही और हर उसने मामले को जो ना वो ठीक किया। तो सारे जो उसके रोल थे स्लोगन सब ने बता दिया। ये मैं कहूँगी कि भाई यानी कि ये एक जो है ना प्रैक्टिकल, अगर हमें रोल मॉडल हमने देखना है तो हमें ये टेड टॉक से मिला है कि उसने प्रैक्टिकली जो है तस्वीरें भी शेयर की हैं साथ, कैसे उसने वहाँ पे सफाई की है, खाना मैनेज किया है, प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। हर यानी कि जो इशू था उसमें वो खुद इन हुई है, इस तरह उसने उसको लीड किया, हर जगह पे पार्टिसिपेट किया। तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर की जरूरत होती है, और फिजिकल जो मेंटली और फिजिकली हेल्दी लोग होते हैं जिसकी बॉडी लैंग्वेज है जब वो हेल्दी थी, तो वो ऐसी जो है लोग वो इन चीज़ों को लीड कर सकते हैं। तो अगर हमें लीडर चाहिए तो स्कूल के मामले में ऐसे लोगों को लीड करना चाहिए। हमारे भी जो कंट्री है उसमें ऐसे ही इश्यूज हैं, ग्राउंड रियलिटीज जो हैं काफ़ी सारी ऐसी हैं, मतलब वेपन्स वगैरह तो नहीं है लेकिन फिर भी
तो अगर किसी ने प्रिंसिपल बनना है तो ये जो टेड टॉक है उसको देखनी चाहिए। जो किसी ने लीडर बनना है लीड करने के लिए तो उसको ये जरूर देखनी चाहिए, ताकि जो है वो अपने अंदर ये वाली एनर्जी लेके आए, जैसे उसके अंदर एनर्जी थी ना, आई लाइक हर एनर्जी मोस्ट। तो बहुत ब्रेवरी और पावर की बात है ये। तो आई विश कि मैं भी ऐसी एनर्जी गैदर कर सकूं और इंशाल्लाह कुछ इंशाल्लाह। चेंज करूं। तो ये था बस। जबरदस्त। थैंक यू। थैंक यू मिस सीरम। जी सलेमान भाई, क्या सीखा आज की टेड टॉक से, क्या समझ में आया आपको? जी मैम, आज की टेक टॉक तो सिमिलर कुछ मेरे पापा की कहानी से भी रिलेटेड है, और हम्म। कुछ मेरे पापा की कहानी से रिलेटेड, और कुछ इसमें ये समझिए कि जब वो अपने एक स्कूल में गई थी, जहाँ पे अब 5 साल बाद जब वो अपने स्कूल में दोबारा वापस आई थी एज अ प्रिंसिपल, तो वो कहानी में शुरू करती है कि मैं पहले स्कूल थी और उसने वहाँ पे एक दो लड़कियों का झगड़ा हो गया, जिसमें उसने कहा, एक लड़की ने देख के कहा कि ये स्कूल नहीं है, ये हम्म। स्कूल नहीं। आगे जाके उसने कहा कि जब मैं प्रिंसिपल बनी, मैं बच्चों के साथ बैठने लगी, मैंने उनके ऊपर मैंने कितने ही हालात ऐसे देखे, बच्चों की जो फीस नहीं दे सकते, जिनकी आप तवक्को, और मैंने उससे भी बदतर हालात देखे हैं। इवन के पेरेंट्स अंदर नहीं उन स्कूलों के डाल रहे थे कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसने मुफ्त तालीम दी। और ये वो सिमिलर टू माय फादर, उनका भी एक स्कूल था और उसमें भी वो एज अ प्रिंसिपल थे। तो मुझे याद है, उन्होंने जब वो एंटर हुए थे उस स्कूल में, रौनक सिर्फ सर की वजह से होती थी, मैं मीन्स मेरे पापा की वजह से, क्योंकि वो स्कूल पहले डेड था, उसको ग्रो करने वाले मेरे पापा थे। उन्होंने 50-50% बस पार्टनरशिप कर ली थी एक बंदे के साथ, जाहिद नाम का बंदा था वो, उसके साथ 50-50%। हर दफा जब ट्रिप जाता, हर दफा जब भी कुछ होता, सर ने कहना है कि बस हमने सर के साथ जाना है, अगर सर नहीं जा रहे पूरी ट्रिप नहीं जाती थी। वो कहते थे सर ने लाजमी जाना है, सवात जाना है, लाहौर जाना है, इस्लामाबाद जाना है, हम चले जाएंगे, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, सर ने सारा इंतजाम करना है, सर के घर से सारा कुछ आना है, तो फिर हमने जाना है, वरना नहीं है जाना। हमने हमने जाना है तो सर के साथ जाना है। और मेरे पापा ने कितने बच्चों को फ्री पढ़ाया है। हालांकि जबरदस्त। अक्सर कहते हैं ना स्कूल्स के अंदर कि आपने इतने घरों की फीस ली थी, इतने घरों की। मेरे बाप ने 2-3 घरों की, 4 घरों की बंदों की बच्चों की स्किप की है फीस। मुझे आज तक याद है, उन्होंने कहा है कि कोई बात जबरदस्त। नहीं, मैं दे देता हूँ, मुझे आज तक। और आज वो उनके काम आ गई है, क्योंकि आजकल बच्चे जब भी उनको वो मिलते हैं तो वो हर दफ़ा सलाम अलैकुम सर जी, क्या हाल है, हर दफ़ा बैठते हैं, कहते हैं सर जी आज ਤੁਹਾਡੀ बदौलत सी अच्छे हैं। कोई भी काम हो वो पापा का हमें लाजमी करके देते हैं, और कहते हैं कि सर जी आपका काम फौरन ब फौरन हो जाएगा। बस सही। मेरा बाप मुझे बस एक ही चीज़ कहता है कि बेटा, मैंने ज़्यादा पैसा नहीं कमाया, लेकिन मैंने इज्जत ज़्यादा ज़रूर कमाई है, और आज वो इज्जत मुझे अपने मरते दम तक काम आएगी। अभी भी काम आ रही है बिल्कुल और सही। मेरे मरते दम तक काम आएगी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सलमान भाई। उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ताकि उसी काम को आप फर्दर कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू जी सो वेरी बिल्कुल मच। मैं कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों को करवा रहा जबरदस्त। हूँ मुफ्त मुफ्त ट्यूशन, क्योंकि अगर मैं आप एकेडमी वाले के किसी के पास जाए ना, तो वो 2,000 या 3,000 से नीचे लेता नहीं है, और मैं उनको फ्री पढ़ा रहा हूँ। और मैं उन्हें खुद कहता हूँ कि अगर तुम्हें कोई भी आपको काम हो, कोई भी मसला हो, मुझे फ़ोन करो, क्योंकि सारी क्लास मुझे, एक हमें नाम दिया हुआ है, मुझे सल्लू सल्लू बोलते हैं, सल्लू हम्म। सल्लू। तो वो मुझे कहते हम्म। हैं, मैं उन्हें हर दफ़ा कहता हूँ कोई भी मसला हो, कुछ भी हो, तो मुझसे नोट्स ले लो, क्योंकि मैं क्लास में ऐसा होता हूँ, अगर कोई नोट्स वगैरह गुम जाए तो सल्लू को मैसेज करो, सल्लू तुम्हें सारे नोट्स दे देगा। तुम्हें बुक की ज़रूरत है, सल्लू के पास जाओ। अभी रिसेंटली मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि ना मुझे बुक की ज़रूरत है, मैंने ना सप्ली वगैरह पास कर, मैंने कहा कोई मसला ही नहीं, मैंने उसे बुक दे दी, मैंने कहा कोई बात नहीं, रख लेना, अगर वापस करनी हुई तो दे दें। कहते हैं सल्लू भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हर दफा वो शुक्रिया करके जाते हैं हम मेरा। बस मुझे इसी चल। दिल में दिल ही दिल खुशी होती है। मेरे अब्बू का भी यही काम था, मैं भी यही करूँ, वो भी बच्चों को मेरी किताबें जो हैं बांट देते थे, 9वीं 10वीं के बच्चों को जो मेरे से पीछे हैं। यही बस मेरे बाप की अच्छी आदत है मेरे में। चले, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो वेरी मच सलमान भाई। अल्लाह ताला आपको सलेमान बाकियों के लिए इसी तरह मसले राह बनाए। जी। सलेमान मेरे एआई के सेशन कर दो। वो तो हमने खुद ही करने हैं, कोई और नहीं कर सकता, ये तो सीधी सी बात है। बट एनी हाउ दैट्स अ गुड थिंग।
जी मिस औलत, क्या सीखा आज की टेड टॉक से, क्या समझ में आया? मिस यही सीखा है इससे कि मिस जो है वो टीचर्स अगर मिस अच्छे हो या स्कूल्स की जो मैनेजमेंट होती है वो अच्छी होती है तो फिर बच्चे भी अच्छे तरीके से पढ़ते हैं स्कूलों में। क्योंकि आजकल जो है बस बच्चे जो है अगर हम किसी बड़े स्कूल्स में चले जाएं और अगर कोई एक नॉर्मल स्टूडेंट वहाँ का मिडिल क्लास के लोग चले जाएं वहाँ पे तो मिस ये होता है कि वहाँ पर मिडिल क्लास वाले स्टूडेंट्स को वो वैल्यू नहीं मिलती जो वहां पर जो है वो अपर क्लास वाले लोगों को मिलती है। तो मिस अगर इस तरह के टीचर्स होंगे इस तरह के प्रिंसिपल होंगे तो मिस मेरे ख्याल से हर बच्चा पढ़ सकेगा मिडिल क्लास हो या चाहे वो लोअर क्लास हो। तो इस तरह हमें भी अपने स्कूल्स में इस तरह करना चाहिए ताकि जो है सब बच्चे पढ़ सकें। जबरदस्त, थैंक यू मिस औलत। जी मिस राहत, क्या सीखा आज की टेड टॉक से आपने? अ, अच्छा जी, माशाल्लाह से सौलत ने भी और गुलशान ने सबके रिव्यू मैंने सुने हैं, ज़बरदस्त है। बस इसमें एक ही बात पे बार-बार ज़ोर दिया गया कि वक़्त ज़ाया नहीं करें। वक़्त ज़ाया करने का जवाज़ भी नहीं बनता और फ़ौरी अमल एक्शन की ज़रूरत है। और जो भी चीज़ है, जो भी इसको लीड कर रहा होता है, प्रिंसिपल है या मैनेजमेंट है, तो उसकी बुलंद बकवात भी रखे और दिल में बच्चों के लिए मोहब्बत और हमदर्दी का जज़्बा भी रखे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भी ग्रो करते हैं, ठीक है जी? और बाकी तमाम चीज़ें तो तकरीबन तमाम पार्टिसिपेंट ने बड़े ही आसान अल्फाज में क्लियर किए हैं। बहुत शुक्रिया मिस राहत, थैंक यू सो वेरी मच। जी मिस जवेरिया, क्या सीखा आज की टेड टॉक से? मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा कोई इमोशनल और ऐसी थी कि मैंने तो अभी ख़त्म होते ही सबसे पहले उसको लिंक कॉपी करके अपने तमाम व्हाट्सएप के जो भी स्कूल्स के ग्रुप हैं उनमें शेयर किया है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपको पता है गवर्नमेंट सिस्टम में हूँ और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत सारी बातें इस तरह से रिलेट कर रही थी कि वो मेरे जहन में वो पिक्चर सारी चल रही थी। तो बेसिकली यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी या इम्पोर्टेंट रोल था वो लीडरशिप का था, जो मैंने क्योंकि फील भी कर रही थी, सुन भी रही थी। तो लीडर अगर आपका स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली आपकी सुस्त से सुस्त टीम भी जो है ना वो खड़ी हो जाती है। तो एक तो ये चीज़, दूसरा जो इन खातून का जो पर्सनैलिटी थी और जो इनका सबसे प्लस पॉइंट था इस चीज़ को इतना स्ट्रांग बनाने में, वो उनकी खुद की एक अपनी लाइफ थी जो कि वो ड्यूरिंग द टेड टॉक शी बिकेम इमोशनल एंड द ऑडियंस वर आल्सो बिकेम इमोशनल। तो वो एक चीज़ थी, वो एक दर्द था, एहसास था जो वो बच्चों का वो फील करके, क्योंकि शी आल्सो बिलोंग टू शी वाज आल्सो बिलोंग टू दैट सिस्टम। तो जैसे उन्होंने बताया, तो ये एक चीज बड़ी एक उनको मजबूत बनाई उन्होंने और उसको खड़ा किया। मतलब फिर जो उन्होंने आ, पूरा जो उन्होंने शेयर किया कि कहाँ से उन्होंने स्कूल को पहुंचा के कहाँ कर, तो मुझे लगता है लीडरशिप का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और मुझे चूंकि मेरे लिए बहुत ये एक इम्पोर्टेंट और खास, और मैं बल्कि इसको दोबारा एक दफा सुनूंगी और टीचर्स को मैंने बोला आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि ये इसको देखें। तो बड़ी अच्छी एक इसमें एक मोटिवेशन एक पावर थी और बहुत अच्छा इसमें मैसेज था हर लिहाज से, थैंक कैसे जीरो से आप लेके। अच्छा, दूसरी जो एक सबसे अच्छी चीज मुझे लगी वो ये थी कि एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं कि हम लोग हमारा जो सिस्टम है स्पेशली कि ये नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है और फंडिंग नहीं है और फला नहीं धमाका नहीं। तो इसमें इन्होंने जो अच्छा लगा कि क्या था वो, सो नाउ व्हाट नाउ, सो व्हाट, क्या था, डू so what व्हाट now सो what, व्हाट, so डू no no व्हाट no, So सो what, व्हाट। now what? so what now what। तो अगर जो भी Yes. है, no matter what, whatever the resources we have, whatever the power, whatever the chances we have, I think she as she said that we have to avail and we have to take that opportunity। तो जो भी है उसको कोई excuses ना हो गया सो हो गया, जो करना है वो करना है। तो ये बड़ी अच्छी मुझे एक एग्जैक्टली, हिट कर गई ना चीज। तो that's it। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो वेरी मच मिस्टर वेरिया, बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें अपने कम रिसोर्सेज में रहते हुए भी चीज़ों को करना सीखना है, और ताकि हमारे स्टूडेंट्स किसी भी तरह से
किसी भी तरह से किसी अच्छे स्कूल के बच्चे से कम ना रह जाएं और कहीं पे भी उनकी कोई डेफिशिएंसी ना रह जाए आपकी वजह से। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने एंड पे सारी ये चीज़ें लाजमी बर्दाश्त करें। दो कि आपको अपने घर से लैपटॉप अरेंज करना पड़े, दो कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन से कोई चीज़ समझानी पड़े, तो जस्ट गो फॉर इट। और आप ये करके देखें, आपके बच्चे इतना खुश हो रहे थे और वो टीचर इतना उनके लिए स्पेशल हो रहा था कि अच्छा वो इतना कुछ हमारे लिए कहते तो हम भी उतना अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर दें। तो ग्रेजुअली एंड स्लोली ये फिर दोनों तरफ से होना शुरू हो जाएगा। मिस मरियम, एक चीज थोड़ी सी और ऐड करूंगी। हमारी 5th क्लास में कंप्यूटर नहीं है, तो हमारे जो प्रिंसिपल थे वो लीव पर थे। तो अब मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि ये जब से मैंने सेशन स्टार्ट किया था लेना, तो मुझे ये बहुत था कि बच्चों को कुछ ना कुछ इसमें इन्वॉल्व किया जाए, उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो पहले तो मैंने उनका बहुत वेट किया, फिर उसके बाद खुद से मैंने ये स्टेप उठा लिया। अब बाद में मैंने उनसे सोचा कि मैं उनको जरूर, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ भी करने से पहले नॉलेज में लाना जरूरी होता है, फिर यहाँ सिस्टम भी जरा ऐसा होता है। तो ये एक चीज थी कि, और फिर बच्चों ने इतना अच्छा, एक और छोटी सी चीज बताऊंगी कि हर बच्चे को मोबाइल चलाना आता है। ठीक है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, इंटरनेट, लैपटॉप और ये सब के बहुत लिमिटेड उनके एक्सेस हैं, बट दे नो हाउ टू ऑपरेट, हाउ टू डाउनलोड स्टफ एंड एवरीथिंग, एंड दे वर वेल अवेयर ऑफ ईच, लाइक मोस्ट ऑफ दिस फजूल स्टफ, लाइक आई वुड से कि टिकटॉक। मैंने उनसे पूछा कि डू यू नो हु इज रेहान अल्लाह वाला, एंड दे वर लाइक, एंड डू यू नो सनी अली की मैं बड़ी फैन थी, तो उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, फिर वो शाहिद अनवर, तो दे वर टोटली अनअवेयर ऑफ लाइक नहीं नहीं, आपने ये लेजेंड्स के पूछना था हवाले कि से। आपको पता है टिकटॉकर में वो जन्नत मिर्जा कौन है, मिस, रजब आई भट्ट हैव द कौन है? लिस्ट, आई हैव द लिस्ट, आई हैव द लिस्ट, एंड आई specifically I wrote each and every student's favorite TikToker, and बच्चे का नाम लिखा मैंने, और उसका मैंने टिकटॉकर का फेवरेट टिकटॉकर लिखा, टू एनालाइज देयर स्टेट ऑफ माइंड, देयर मेंटल लेवल, कि वो कहाँ पर। और ऑब्वियसली जो भी आपको पता है, बच्चे हैं, जनरेशन है, और जो इस तरह की है, जिनको जो थोड़ी सी नॉलेज की जिनको वो है, तो वो जन्नत मिर्जा और रजब और ये जितने आपने नाम लिए सारे। तो मैंने फिर खैर थोड़ा सा इस पे इनिशिएटिव लिया। तो ये कहने का मकसद था कि स्टेप उठाना पड़ता है ना थोड़ा सा, हालांकि कंप्यूटर नहीं बिल्कुल। है, इंट्रोड्यूस नहीं करवाया हुआ। और मैंने सोचा कि मैं इस पे हायर अथॉरिटीज पे भी इसको मैं ईमेल करूंगी, जितना जो हद तक हो सकता है इससे रिक्वेस्ट करूंगी कि दे शुड इंक्लूड बेसिक्स की जो एआई और जितना कंप्यूटर लिटरेसी है, दे मस्ट इंक्लूड इनटू करिकुलम। तो दिस इज व्हाट आई हैव डेफिनेटली, प्लान। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपकी मदद करे। बहुत शुक्रिया मिस्टर जवेरिया जी। शफीक भाई, मैं सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, फिर मैं आपका जरूर इंटेक देती हूँ। शफीक भाई, क्या सीखा आज की टेड टॉक से और क्या की टेक अवेज हैं आपके? आज की जो टेड टॉक थी, ये तो ऐसे ही समझ लें कि एक प्रैक्टिकल था जो मेरे साथ भी हुआ। मुझे याद पड़ता है जब मैं फर्स्ट डे, जब मैंने ज्वाइन किया एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे, तो फर्स्ट मीटिंग में ही मैं ये समझता था कि मैंने डिपार्टमेंट को नीचे से उठा के ऊपर ले जाना है। तो मुझे उस मौका पर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ा। और फिर मैंने बाद में ये चीज़ सीखी कि हमें स्टेप वाइज अपने मकसद की तरफ जाना है। एकदम हम अपने जो कह लें मकासद को, या रातों रात हम अपने मकासद को हासिल नहीं कर सकते। तो सेम चीज़ें ही यहाँ पे भी डिस्कस हुई। बेसिकली अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे काम कर रहा है, एज अ लीडर का रोल अगर कोई प्ले कर रहा है, तो अल्टीमेटली उसे जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो एक आम टीचर उसको फेस नहीं कर सकता, या आम एक बंदा जो एम्प्लॉई है उसको फेस नहीं कर सकता। उसके लिए चीज़ें देखना कुछ और तर्ज पे होती हैं, और दूसरों के लिए चीज़ें देखना कुछ और तर्ज पे होती हैं। तो ये टेडेक्स टॉक ओवरऑल लीडरशिप रोल में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। ख़ास तौर पे जो 3 लॉज बताए गए हैं, वो लॉज अल्टीमेटली अगर कोई कहीं पे भी, चाहे वो किसी छोटे इदारे में प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहा है, या वो किसी एक स्कूल के एक सेक्शन में बतौर लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, तो ये जो 3 लॉज हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे तमाम लोगों के लिए। जिसमें पहला लॉ ऑफ प्रोसेस है कि कामयाबी अल्टीमेटली पहले दिन ही जाते ही आपको नहीं मिल जाएगी, आपको एक मुसलसल
ये अमल है जिसमें आप अपना मकासद हासिल करेंगे। दूसरा जो लॉ है वो अल्टीमेटली लॉ ऑफ पेन है, कि हम बगैर मुश्किलात के या बगैर तकालीफ उठाए हम अपने गोल अचीव नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात जो लॉ ऑफ रबड़ बैंड है, जैसे रबड़ बैंड अपनी असली शक्ल से खींचने पर काम करता है, वैसे ही हम भी अपनी लिमिट से अगर निकल कर ज़्यादा सीखते हैं तो फिर हम आगे निकलेंगे। बेसिकली कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की भी कोशिश कर रहा है ये जो हमारी टेडेक्स टॉक है, इसमें स्पीकर। तो ओवरऑल ये टेडेक्स टॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो काबिल अमल हैं और प्रैक्टिकल के बहुत करीब हैं। प्रैक्टिकली इन चीज़ों को अगर हम फॉलो करेंगे, ख़ासतौर पे ये जो लॉज डिस्कस हुए, तो फिर हम अल्टीमेटली अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, हम लीडिंग रोल प्ले कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे आज की टेडेक्स टॉक जो है वो काफ़ी अच्छी लगी है, कि ये हमारे लिए एक कह लें कि कुछ चीज़ें ऑलरेडी पता थी, लेकिन ये प्रिंसिपल्स हैं या ये इस तरह से फॉलो किए जाते हैं, ये आज पता चला मुझे। जी सही। चलें, थैंक यू सो वेरी मच शफीक भाई। जी आसिफ भाई, क्या सीखा आज की टेड टॉक से, क्या समझ में आया? ये इतना लंबा सेशन हो गया कि मैं अपने पॉइंट्स भूल गया कि कौन कौन से पॉइंट थे। अच्छा, चले आप याद कर ले, मैं तब वो तक मिस ये मेरम मुझे चले ये पूछो। पॉइंट मुझे याद है कि एक जो पुराना स्कूल था, उसको उन्होंने आके आबाद किया, उस पर मेहनत की, स्कूल में रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो अपडेट किए, रूल्स बनाए बच्चों के लिए, और कुछ सख्तियाँ की, और बच्चों को फिर प्यार मोहब्बत भी दी कि अगर आपसे कोई प्यार नहीं करता तो समझ लेना कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपकी प्रिंसिपल हूँ। अ, उनको इसी तरह उनके जो है उनके दिल भी रखा, उनको फोर्स भी नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ पॉलिसियों से जो है स्कूल नहीं चलते हैं, बच्चों को प्यार मोहब्बत भी दी जाए और उनको वो माहौल भी दिया जाए सीखने का। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो वेरी मच आसिफ भाई। जी मिस एरम, माजरत के साथ इतना सारा वेट कराया आपको मैंने। जी मैं ये कह रही थी कि जो हम पिछली 3 दिन से टेड टॉक देख रहे हैं, फीमेल स्पीकर हैं उसमें, और सबने इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है। और इसमें हम ये बात नोट करते हैं कि जो लर्निंग और डेवलपमेंट है या प्रोग्रेस है, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो की रोल प्ले करती है। और इसीलिए ही शायद जो फीमेल हैं ज़्यादा, उनको प्राइमरी स्कूल सेक्शंस में प्रेफरेंस दी जाती है, और मेडिकल की फील्ड में भी प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो ना ट्रू लर्निंग और ट्रू प्रोग्रेस होती है, इसको हीलिंग प्रोसेस भी कहते हैं। तो इसके लिए जो है ना ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है। तो जब हम इन सब टेड टॉक को देखते हैं तो हमें इससे सीखना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारे अंदर ये वो सॉफ्टनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस कम है तो हम उसको डेवलप करें। ये रिलेशनशिप बिल्डिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कहना चाह रही थी। थैंक यू सो वेरी मच मिस एरम, थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल ऐसा ही है, आपकी कोई भी काम है वो हमारे इमोशंस के साथ बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। और हर स्कूल में अगर आप अपने चाहते हैं प्री स्कूल और प्राइमरी सेक्शन बहुत अच्छा हो जाए, तो डेफिनेटली बच्चे छोटे होने की वजह से प्रेफर किया जाता है कि वहाँ पे ज़्यादा फीमेल्स हुई। इवन बॉयज़ स्कूल में भी, हमारे यहाँ के जितने भी गांव के करीब जो स्कूल्स हैं वहाँ पे भी अब बॉयज़ स्कूल में भी फीमेल्स की इंडक्शन है हो चुकी है, जहाँ पे वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि फीमेल्स को प्राइमरी सेक्शन जो वो दिए जा सके, ताकि बच्चों की एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी हो सके और वो एक मदरली इन्वायरमेंट में सीखना शुरू करें, रादर देन कि हम मेल्स जो हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, या हम जो है वो शोर पसंद नहीं करते, थोड़ा डिसिप्लिन्ड ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से बच्चा जो है वो अपने आप को सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फिर काफ़ी चैलेंजेस आ जाते हैं उनकी लाइफ में भी। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। अब आई होप सो कि गवर्नमेंट लेवल पे भी इस पे अच्छे खासे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। आसिफ भाई एक एक सवाल बात है मेरा कहना आपसे। चाहूंगी, जी जी मिसेरम। मैंने ये नोटिस किया कि जब मेल जो होते हैं ना वो हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो जिस भी रोल में वो आते हैं ना, तो वो ना या तो compete करने लग जाते हैं, या वो ये भूल जाते हैं कि डिफरेंसेस क्या हैं। तो जो फीमेल होती है ना, उनमें अल्लाह ने एक अलग से इंटेलिजेंस रखी होती है, तो वो ना लिहाज ज्यादा करती है और नरम होती है ज्यादा। तो अब यहाँ पे मेल्स बुरा ना बना जाए, उनमें बहुत और भी अच्छी अच्छी क्वालिटीज होती हैं।
लेकिन इसकी वजह से जो है ना, ये जो टीचिंग का प्रोफेशन है ना, इसमें जो छोटे लेवल पर या बड़ों पर भी, तो इसलिए जो है ना प्रेफरेंस दी जाती है। जी। आसिफ भाई, मेरा सवाल है आपसे। अब आपको ऑलमोस्ट जो है 2 महीने पूरे होने वाले हैं। जब आपने जी पहले जी। दिन शुरू किया था तब की टेडेक्स में और आज की टेडेक्स जो आप देखते हैं उनमें कुछ डिफरेंस फील होता है अपने लिए? जी जी मैम, बिल्कुल फील होता है मुझे। हम्म। जी जी, लिसनिंग के हवाले से जो है वो मुझे जो है कुछ पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। जो क्लियर नहीं होते हम्म। हैं तो मैं चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ। और जो चैट जीपीटी या कॉल एनी के सेशन होते हैं वो भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाते हैं मेरे। जबरदस्त। जब मैं अच्छा पहले आसिफ भाई, अगर मैं कोई कोर्स। जी मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाह रही थी। अब आप आहिस्ता आहिस्ता चैट जीपीटी की हेल्प को मिनिमाइज करते जाएं। आपको इंडिपेंडेंटली सीखना है, और इंडिपेंडेंट आप तभी होंगे जब आप उसको छोड़ते जाएंगे चैट जीपीटी की हैबिट को। ठीक है। आप दूसरी बात ये कर सकते हैं कि आप साथ साथ लिखना शुरू कर दें। जो आपको लगता है ना कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी एक डायरी बनाएं और उस पे रोज अपनी छोटी छोटी चीजें को नोट डाउन करते जाएं। फिर जब आप उनको नोट डाउन कर जी जी लेंगे ना, तो 2 से 4 दिन के बाद आपकी इतनी अच्छी हैबिट बन जाएगी कि आपको ऑटोमेटिकली चीजें याद होना शुरू हो जाएंगी। फिर आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू में ये थोड़ी सी मेहनत हम करते हैं और उसके बाद ग्रेजुअली एंड स्लोली फिर हमें जैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी ना अब आपकी माशाल्लाह से, इसी तरह चीजें जी जी याद रहना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। जी मैम। चले। ओके जी। वैसे ओके तो ओके। डिजिटल नोट्स हूँ तो ज़्यादा अच्छी बात है कि आप साथ साथ अपनी टाइपिंग स्पीड भी इन्हेंस कर लेंगे और साथ साथ अपने आप जो है वो डिजिटल नोट्स भी बनाते जाएंगे। तो आप इसकी भी प्रैक्टिस करके देख लें, या हैंड रिटन रखना चाहे तो हैंड रिटन रख लें। उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपको फिर टेड टॉक को समझने में। जी जी ओके बिल्कुल सही। पार्टिसिपेंट्स, हमारे आज के टास्क पूरे हो चुके हैं। अब आपके बाकी के 3 टास्क हैं जो कि आपको इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली कंप्लीट करने हैं, जिसमें आपके 2 AI सेशंस हैं और एक आपका इंटरव्यू है जो कि आपने कंप्लीट करना है। ठीक है। चाहे तो अभी क्लास के बाद कर सकते हैं और चाहे जब आपके पास टाइम हो आप तब कर लें, लेकिन कल क्लास में आने से पहले उनको मेक श्योर कर लीजिए। ओ, कल तो हमारा वीकेंड है भाई। क्लास में आने से पहले, मंडे से पहले आपके टास्क कंप्लीट हो। और मैंने जैसे कि आपसे रिक्वेस्ट की थी, आई ट्राई हार्ड के कल इंशाल्लाह आपको 1 दिन के टास्क ज़रूर दे दूँ, ताकि हम 29 अगस्त को अपनी लास्ट क्लास जो है फेयरवेल क्लास करेंगे और उसमें आप सबकी जो भी रिफ्लेक्शंस होंगे, फीडबैक्स होंगे, हम उनको सुनना चाहेंगे। फिर हम क्या करें, टाइम बहुत शॉर्ट है मेरे पास भी, तो इसलिए मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करी हूँ कि ये वीकेंड थोड़ा सा आप गुजार ले इस तरह। बट आई ट्राई कि जो ज़्यादा टाइम ना लगे, टर्म जो जिसमें कम से कम टाइम कंज्यूम हो आपके, वही टास्क मैं आपके साथ शेयर करूँ, ज़्यादा नहीं करूँगी। ठीक है। सो आई ट्राई कि इंशाल्लाह आप और एंड आई बिलीव यू गाइस कैन डू इट। अब आप सबकी बहुत अच्छी पेस भी बन चुकी है, अब आप बहुत अच्छे तरीके से अपने सारे टास्क भी कंप्लीट कर लेते हो, तो अगर आपको इंडिपेंडेंटली भी करने पड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, अगर कोई चैलेंज होगा सो विल डिस्कस ऑन मंडे। हम इंशाल्लाह मंडे को दोबारा उसको डिस्कस करके क्लास में उसको फिक्स कर लेंगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मैम वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मिस। टुडे। जो जी आसिफ भाई। मैम जो टास्क हम अभी ऐड कर रहे हैं, क्या उसको स्किप ना कर दें? नहीं, इसको स्किप नहीं करना। ऐसे ना करें। अब इतने अच्छा काम करके अब आखिर पे जाके ये काम ना करें प्लीज। सही हो गया चलो जी ठीक। मिस गुलशान। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। मिस मरियम, कल हमारी क्लास होनी है या कल सिर्फ आप हमें 1 दिन के टास्क अलॉट कर देंगी? नहीं नहीं, मैं अर्ली मॉर्निंग आपके साथ सिर्फ आपके टास्क शेयर करूंगी, दैट्स इट। ठीक हो गया। ठीक। देर विल बी नो क्लास। क्लास हमारी 5 डेज की ही है, ताकि आप अपना ठीक हो गया। सैटरडे अपनी फैमिली के साथ ही गुजारेंगे। लेकिन अगर आप में जिसके पास सुबह में टाइम है वो सुबह में कंप्लीट कर ले, जिसने रात के ये 2 घंटे जो क्लास का टाइम है इसमें कंप्लीट करना है, वो इसमें कंप्लीट कर ले, जब चाहे वो कंप्लीट कर सके इंडिपेंडेंटली, लाइक सैटरडे संडे 2 दिन आपके पास। जी आसिफ भाई। मैम एक वेबसाइट मैंने देखी थी, आप जो वर्ल्ड वाइड ट्रेनिंग करा रहे हैं, क्या उस पे हम हम्म। भी कर सकते हैं? वर्ल्ड वाइड ट्रेनिंग करा रहे हैं? कौन सी वेबसाइट पे? रेहान 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 अभी जो हाँ नहीं ट्रेनिंग आसिफ शुरू हुई भाई है हमारी बिल्कुल। वर्ल्ड वाइड, हाँ जिसका 7 डेज ट्रायल भी एक्चुअली, है। हाँ मैं यही बताने लगी ना कि मैं ये हम वो करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा रोक दिया कि भाई मेरे पार्टिसिपेंट्स के लिए ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत सारे टास्क पहले से कर चुके हैं। तो फिर ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है आप सबके लिए अपने सारे लिंक्स वहाँ पे पेश करना।
तो अगर आप करना चाह रहे हैं, आई विल गो फॉर इट, मैं अलाउ कर देती हूँ, आप लोग कर लें उसे। लेकिन उसका सिर्फ यही चैलेंज है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि अगर आप उसको करेंगे तो फिर आपको पूरा डे 1 से लेके लास्ट डे तक के सारे टास्क उसको ऐड करने पड़ेंगे। तो अगर इतना टाइम है और आप लोग कर लेंगे तो आई कम्युनिकेट द टीम और फिर हम वो कर लेते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ उनसे ये कहा था कि इस बैच को थोड़ा रिलैक्स कर दें। वो बैच 12 के लिए हम कर सकते हैं क्योंकि बैच 12 अभी शुरू हुआ है और उनके 1 वीक हुए हैं, टास्क स्टार्ट हुए हैं, तो दे कैन डू इट। बट मेरे बैच वाले अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही आप लोगों के 6 वीक्स कंप्लीट हो चुके थे और फिर वो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हमने इंट्रोड्यूस करवाया और हम उस पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं। लेकिन आप लोगों के वो 6 वीक्स का काम मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ऐड करना और काफ़ी हेक्टिक भी हो जाएगा सबके लिए कि वो कैसे इसको करें ना। मतलब आप सब बहुत मुश्किल से अपने ये 2 घंटे के अलावा थोड़ा टाइम मैनेज करते हो ना, तो फिर मुश्किल हो जी जाता है जी कि आप अपने टास्क कंप्लीट करो या फिर आप उसमें ऐड करो, क्योंकि उसमें टास्क ऐड करने के एटलीस्ट आपको 10 से 15 मिनट एक लिंक के लिए चाहिए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्लोली आप उसको करेंगे। हाँ, आप में से जो पार्टिसिपेंट्स इंशाल्लाह हमारे साथ लेवल 2 में आएंगे वो ज़रूर उसी पे काम करेंगे। अच्छा, वो शीट वाला सिस्टम नहीं होगा? नहीं, फिर हम शीट खत्म कर देंगे ना। सही है, ऐसा सिस्टम सही है। हाँ, ताकि फिर आप अपनी डेली प्रोग्रेस खुद ही मॉनिटर करते जाएंगे। जी जी बिल्कुल। ठीक है। और वहीं पे हम मेंशन कर देंगे कौन से टास्क आपके एक्सेप्टेड हैं, कौन से रिजेक्टेड हैं और उनके रीज़न क्या है। वो सारा डे टू डे वहीं पे ऐड होता जाएगा और फिर आपको वहीं दोबारा पे से उन टास्क के लिंक्स जो है ऐसे वो एडिट करके ऐड करने होंगे। वहीं पे ऐसे मसले नहीं ऐसे है, कोई कहेगा कि एरर आ गया, पोस्ट नहीं हो रहे थे, बग आ नहीं, गया? अल्लाह का शुक्र है अभी अभी आसिफ भाई वो बिल्कुल ब्रांड न्यू सिस्टम है ना हमारा, तो ये बग्स तो अच्छा। आएंगे शुरू में। तो वो अब इसीलिए तो कहा है कि आप लोग प्रो हो गए तो आप लोग को प्रो लेवल का ही काम कराएंगे, तो थोड़ा सा वेट करें। जो बग्स हैं वो दूसरे लोग बर्दाश्त करें ना, आप क्यों करें, तो वो वही करें। जी जी। पहले वो अच्छे से चला के सिस्टम हमारा अप्रोप्रिएट कर दें और जब वो रनिंग में आ जाए फिर आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, ओके। सही हो गया जी। इशाल, आपका कोई सवाल है? मैं मैम जब चैट में पढ़ूँ अभी क्या सर्टिफिकेशन मिल लिखा है। जाएंगे उसके बाद लेवल 2 कब स्टार्ट होगा वैसे? आई विश मैं भी अब तो लेवल 2। अब ऐसा है इशाल कि हमारे पास लेवल 2 के जैसे ही 15 to 20 पार्टिसिपेंट्स हो गए ना तो हम लेवल 2 की क्लास शुरू कर देंगे। कोई भी क्लास 20 से लेस पार्टिसिपेंट्स के साथ शुरू नहीं की जा सकती ना, क्योंकि देखिए हमारे पहला 1 महीना उतनी ही एनर्जी लगती है जितनी कि 4 लोगों पे लगानी है और जितनी 20 लोगों पे लगानी है। तो अगर हम एक अच्छे नंबर ऑफ अमाउंट के साथ स्टूडेंट के साथ बंच ऑफ स्टूडेंट के साथ ऐड शुरू करें तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ताकि अगर काम करना भी चाहे तो उसमें से हो सकता है हमारे 10 के 10 पार्टिसिपेंट्स बहुत अच्छे निकल आए और 10 ऐसे पार्टिसिपेंट्स हो जिनको थोड़ी सी गाइडलाइन चाहिए और वो बहुत अच्छा काम कर लें। तो इट डिपेंड्स, लेकिन मैम हम ये लेकिन चाहते हैं कि एक अच्छे नंबर के साथ शुरू किया जाए बस। मैम लेकिन लाइक अब देखें जैसे जो सितंबर के दरमियान में लाइक 20 हो गए तो फिर आप सितंबर के दरमियान में सेशन शुरू कर लेंगे? बिल्कुल हम शुरू कर लेंगे। ये फर्क नहीं पड़ता कि भाई महीना का एंड है, स्टार्ट है, मिड है, कहीं से भी। जब जैसे ही हमारे पास 20 पार्टिसिपेंट्स होंगे वेरी 2 to 3 days आफ्टर विल स्टार्ट द क्लास। हमें सिर्फ ये फैसिलिटेटर अरेंज करने पड़ते हैं। अच्छा, या टाइम स्लॉट देखना पड़ता है कि हम किस टाइम में कौन से लिंक्स अवेलेबल हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे जो चीज़ें हैं ना वो चल रही होती हैं। तो जैसे जैसे हमारा थोड़ा टाइम मैनेज होता है, कोई स्लॉट निकलता है, हम वेरी नेक्स्ट डे में ही हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी 2 दिन के बाद वो लाजमी क्लास शुरू हो जाती है। और तो मैम इतना ही वैसे टाइम लगता है, लाइक ज़्यादा नहीं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इसका लेवल 2 स्टार्ट हो? आपको आपको प्रॉपर वो ग्रुप्स में ऐड किया जाता है ना, फिर वहां पे अनाउंस किया जाता है कि आपकी क्लास इस डेट को होगी, फिर आपकी डेमोन्स्ट्रेशन क्लास एक अनाउंस की जाएगी, फिर क्लास रेगुलराइज की जाएगी। तो वो बिल्कुल उसी तरह चैनलाइज करके कम्युनिकेट करते हैं। मैम लेवल 2 भी जी, आप करवाओगी? अभी लेवल 2 की कोई कोई पता नहीं वो कौन कराएगा। और देखिए हमारा ये मानना है कि एक ही इंसान को देख देख के बोर हो जाते हैं ना, बच्चे भी बोर हो जाते हैं तो बड़े भी बोर हो जाते हैं, तो फिर हम चेंज करेंगे ना लेवल 2 में, ताकि एक नया फैसिलिटेटर आए, नए लोग आपको सिखाएं, तो फिर ज्यादा अच्छा होता है। चेंज चाहिए होता है ना, इंसान की नेचर भी नहीं नहीं, चेंज हम तो मांगती बोर है नहीं हो रहे, हमें तो बहुत इसलिए। अच्छा लगता है। मैम हम बोर नहीं हुए आपसे। नहीं, ये तो अभी की बात है ना, ये तो हम लास्ट डे सुनेंगे ना। जी मिस राहत। अच्छा जी, हो सकता है आने वाले वक़्त में तो हमारी मरियम ही प्रिंसिपल हों। और अच्छा सेकंड मिस मरियम राहत। जी, जी, मैंने कहा मैं आपका पहले ही बता दूँ सबको, ठीक है जी। अच्छा मरियम, मुझे चलिए ना असल में मेरी मम्मी
अम्मी की तबीयत खराब है, मुझे पंजाब जाना है, शायद मैं कल या परसों को निकलूँ, तो हो अच्छा, सकता है मैं क्लासेस ज्वाइन ना करूँ, क्योंकि सही। तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है जी। लेकिन अल्लाह ये है ताला कि उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। जी, तो लेकिन ये वाली जो भी मेरी टास्क वगैरह इनकम्प्लीट अगर मुझे टाइम मिला, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे कंप्लीट कर लूँ। लेकिन नहीं तो हम्म। मैंने आपको ये चीज़ को इन्फॉर्म किया है कि ज़ाहिर बात है जब पंजाब में जाना है तो सीरियस मामला है, तो हाँ अच्छा जी, नहीं बिल्कुल आई लगेगा अंडरस्टैंड कि आप नहीं कर पाएंगे, तो आई विल गिव यू द टाइम, टेक इट इजी, आप परेशानी हो इस बात के लिए, ठीक है, टेक इट जी, इजी, अल्लाह ताला उनको सेहत और मैम तंदुरुस्ती दे। जी मिस लैला। कांग्रेचुलेशंस एडवांस। राहत आपी, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ मिस लैला, और आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, चले अगर मैम पहले बात ही। सुने, मैम बात सुने, देखें पॉजिटिव और अच्छी खबर है। अगर नहीं भी है तो अल्लाह ताला ये चीज आपके लिए ये खुशखबरी लाएं, हम भी सुने इंशाल्लाह। मैम रात ने कहा है बस तो फिर मिस है, लैला, पक्का अभी है। हमने लीडरशिप देखी ना, अभी हमने यही सीखा लीडरशिप के बारे में, तो मुझे लगता है कि अभी मेरे पास उतनी अच्छी क्वालिटीज नहीं है, तो जब मेरे पास ये क्वालिटीज होंगी ना, मैं इतना अपने आप को कैपेबल समझूंगी, तो डेफिनेटली आई अप्लाई और आस्क द टीम के भाई हाँ अभी ये वाली मेरे पास क्वालिटीज हैं, या उनको लगेगा तो वो ये करेंगे। पर राइट नाउ मुझे लगता है कि मेरे पास ये वाली सारी क्वालिटीज अभी मैम नहीं है, आई सबसे हैव टू पॉलिश माई सेल्फ ब्यूटीफुल एंड लर्न चीज, मोर। मैम ब्यूटीफुल चीज ये होती है कि अगर इंसान के पास बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी हो और अपने आप को बिल्कुल डाउनवर्ड समझता हो ना, बहुत कुछ होने के बावजूद, तो इससे बड़ी कोई ब्यूटी नहीं है। तो जज करने वाले बहुत चले ज्यादा बहुत बैठे शुक्रिया हैं आपका। माशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, और इंशाल्लाह हम जी देखेंगे। मैम, और वो हमारी तरफ आपने इतनी से दे तो कि मैं एडवांस हजम कर लूं, बस कांग्रेचुलेशन। आप ये दुआ किया करें कि अल्लाह हजम कराए, बस और ना दे, बस हजम करने की तौफीक दे, बस ये बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया राहत आपी, अब मैं आपको कॉल करती हूँ बाद में। जी मरियम कॉल नहीं करना, मैं तो बस यही रिक्वेस्ट कर रही थी कि तुम कराची आ ही जाओ, हमारा भला हो जाता, नहीं तो पंजाब में कहीं पे ऑफर कर दो कि मुझे यहाँ पे आप कर दें शिफ्ट है। ऑनलाइन में तो नजर आती हो, फिजिकल में भी तो चाहिए ना मरियम। फिजिकल में आप हो ना, फिजिकल में इतने सारे लोग इतने अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऑनलाइन में ही ठीक हूँ मैं। बहुत ऑनलाइन शुक्रिया आपका, बहुत कॉपियां शुक्रिया। कराएं, चलें आगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। होप फॉर द बेस्ट, मिस इंशाल्लाह हो सकता है कोई सबब बन जाए, मैं मैम, कराची आ जाऊँ। जी आसिफ भाई। मिस गुलशान मुनवर जिसकी टीचर हो वो तो तरक्कियां करेगी। जी बिल्कुल ऐसा सर ही है। आपने मुझसे ए, पूछा जी जी, आपको ही कहा। क्या? सर क्या बोला आपने, मुझे समझ नहीं आई। मैंने बोला कि जिसकी टीचर जिस गुलशान मुनवर हो वो क्यों नहीं तरक्कियां करेगी, वो तो तरक्कियां करेंगे ना। बहुत शुक्रिया सर, हो सकता आपने है क्लास आने की वाली बहुत। बैच में हो सकता है आने वाली बैच में मिस गुलशान जो है वो ट्रेनिंग कराए लेवल 1 को। आप सब करा सकते हैं आसिफ भाई, आप सब करा सकते हैं। देखिए मैं आज इस बात को बिल्कुल कन्फेस करती हूँ कि मिस गुलशान मेरी टीचर हैं, और मैंने ही जी उनको इस सिस्टम के बारे में बताया था। इट वॉज जस्ट एक छोटी सी चिट चैट सेशन था हमारा, और हम कोई 6-7 साल के बाद हम लोग मिले थे। वो भी इस वजह से कि इनके भतीजे भतीजियां मुझसे पढ़ने आते थे, और मुझे पता चला कि मेरी टीचर गाँव आई हुई हैं, तो मैंने कहा अच्छा चलो इनसे मिलने चली जाती हूँ। और ईद के बाद की ये समर वेकेशन थी, ये इसलिए आई हुई थी। मैं जैसे इनसे मिलने की, इन्होंने पूछा आप क्या कर रही हो आजकल ना, तो मैंने बताया इस तरह से कराची बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और वो बहुत अच्छी है, उनके साथ काम करी हूँ, और ये अच्छा। वो सुन के कहती मुझे भी अच्छा लग रहा है, मैंने सरेहान को बहुत बार सुना है, तो आप मुझे बता दें ये क्या है। मैंने सिर्फ उनको बताया कि ये सिस्टम क्या है और किस तरह से है। डिसीजन उनका अपना था, और यहाँ तक आने की सारी स्ट्रगल भी उनकी अपनी है। बाकी मैंने इसलिए डे 1 ये चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं कराई, क्योंकि मुझे शायद ये फील हुआ कि किसी भी तरह से ये ना लगे कि कहीं कोई फेवरेटिज्म हो गया, या मैंने किसी को किसी दूसरे पे प्रेफरेंस दी, कि अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर ली। तो बस ये एक रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने ये बात नहीं की थी, और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी स्पेशली कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कभी भी मेरा नाम नहीं लेंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कभी भी आपका नाम नहीं लूँगी। मुझे इंटरव्यू में ही उन्होंने बताया कि मैंने बहुत जगह पे ये बताया कि इसी टीम के ही एक मेंबर से मुझे पता चला, और फिर मैंने इस चीज़ को परसू किया। और
उन्होंने मुझसे 2 बार कहा, बल्कि इससे 3 बार भी कह चुकी थी मुझसे कि मेरा इंटरव्यू कर लो, मुझे मुझे पहला इंटरव्यू आप ही करो ताकि मुझे आइडिया हो जाए इंटरव्यू देते कैसे हैं। पर मैंने उनको कभी भी सीधे तरीके से मजा नहीं बताई थी। मैं हमेशा उनको कहती थी हाँ कर लूंगी, बट ऐसा होता था कि वो जब भी मैं उसे प्लान करती थी तो मेरी उस दिन कोई ना कोई मीटिंग आ जाती थी दौलत सर के साथ, या अपनी क्लास का कोई काम या कुछ ना कुछ ऐसा आ ही जाता था। तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो इंटरव्यू डिले होता गया, क्योंकि शायद मेरी अपनी नीयत भी नहीं थी अभी करने की, तो इसलिए वो इंटरव्यू डिले होता रहा। और फिर लास्टली जब इन्होंने कहा तो आई वॉज प्लान्ड कि हाँ इंशाल्लाह मैं 8th वीक के डे 3 और डे 2 पे लाजमी इंटरव्यू करूंगी। और आई विल कन्फेस इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू कि हाँ ये मेरी टीचर है और हमारा एक बहुत अच्छा फैमिली रिलेशन है, और हम बहुत बचपन से ही, जैसे कि मेरी बहन ने भी कमेंट लिखा इनके लिए कि वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है इनसे, और वो बहुत आइडलाइज करती हैं। और हमारी मेरी हम सब बहनें बहुत आइडलाइज करती हैं इनको। और ये सिर्फ इनकी ही बात नहीं, इनकी 2 बड़ी बहनें भी हमारी टीचर हैं, इनके अम्मी भी हमारी टीचर हैं, इनके अब्बू भी हमारे टीचर हैं, इनके भाई भी हमारे टीचर हैं। सो लाइक ये पूरी फैमिली की रही है हमारा ये सिलसिला। तो ये बस मैंने जो बातें बताई उसकी रीज़न सिर्फ इतनी थी कि मैं चाह रही थी कि एक फेयर सिस्टम में रहते हुए ही मैं डिलीवर करूं, कहीं पे भी किसी भी पार्टिसिपेंट्स को ये फील ना हो कि अच्छा कोई रिश्तेदारियां भी यहाँ पे निभाते हैं, कुछ भी करते हैं। क्योंकि ये चीज़ मैंने सीखी थी अपने प्रिंसिपल दौलत साहब से, जिनके अपने 3 बहन भाई इस सिस्टम में इंडक्टेड है, बट उन्होंने कभी भी उनको प्रायोरिटी नहीं दी। उन्होंने हमेशा एक फेयरनेस जो है उसी को ही यहाँ पे एक कस्टम सेट किया कि जो जितना डिजर्व करता है और जो जितना काम करता है उसको उतना ही एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। सो आई ट्राइड कि मैं भी थोड़ा सा उसको चीज़ को फॉलो कर सकूं। तो बस ये रीज़न थी। माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन था, हमें बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही यादगार सेशन है, और इस ट्रेनिंग को भी ये सेशन जो है यादगार बना के गया। बहुत शुक्रिया, ये बहुत हमें शुक्रिया। याद रहेगा जी हमेशा। मैं आसिफ थैंक भाई, यू आपको आसिफ कैसे भाई, पता थैंक चला कि मिस गुलशान मिस मरियम की टीचर है? ये सीक्रेट कैसे वो रिवील हुआ? ये मैं इंटरव्यू आप देखा था। चुपके चुपके सुनते रहते हैं बातें क्या? इस नहीं तरह नहीं, आज आप मैं नहीं मेरी नहीं स्ट्रीम मिस में इंटरव्यू कैसे आ देखा था। जाते हैं? आप जरा मुझे ये भी बताएं ना नहीं कि आपको कैसे मेरा लिंक रोज मिल जाता है? ये जैसे मिस मैं सीरम रिस्ट्रूम ओपन करता ये हूँ क्या मुझे सीक्रेट है यही आसिफ आप। भाई? जैसे ही मैं ऑनलाइन आती हूँ आप मेरी स्ट्रीम में कैसे आ जाते हैं, आप मुझे बताएं। मेरी ये गेस्ट जो जैसे है ही वो आप पीछे रह जाती हैं, आप पहले से आ जाते हैं, और मैं तो आज डर गई। ये हो क्या है? मैं आप कहाँ से आ जाते हैं? तो सॉरी, मैंने आपको अचानक ही रूडली कह दिया कि आप किधर आ गए। तो उसके लिए मैं आपने ऐसे आपसे कहा था माजरत चले जाओ, चाहती हूँ। आप क्यों आ गए हो? नहीं, वो असल में क्योंकि मेरी वो गेस्ट ने आना था और हम 2 फीमेल्स आपस में बातें कर रही थी, तो अचानक आप आ गए। तो मैं हैरान हो गई कि ये क्या हो गया अचानक से, तो मैं थोड़ा सा वो बिन हो गई, बुलाए मेहमान कॉन्शियस। की आपने कहावत नहीं सुनी? बिन बुलाए नहीं, मैं मेहमान की कॉन्शियस हो कहावत। गई ना, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ। खैर, आपने तो वाकई आज बड़ा सीक्रेट रिवील किया है। ये मैं जब कैसे भी हुआ? रिस्ट्रीम ओपन करता हूँ ना, तो आपकी हाँ लिंक आ हाँ। जाती है कि इरम मुश्ताक ने आपको लिंक, स्पेशल गेस्ट के लिए लिंक सेंड की है, आप एज ए गेस्ट ज्वाइन कर लो। और कोई ऑप्शन नहीं आता है। मैं जब भी ओपन करता हूँ ऐसे आ जाता है, पता नहीं क्यों आप मैं ना शेयर उस कर देते हो। टाइम से ये बात सोच रही हूँ, मैं आपके साथ मुनासिब है रोज क्यों शेयर करूंगी। आज मैं मिस ये सिद्रा दो तीन जेटली दफा से हैं, हुआ है उनसे ऐसा। बात कर रही थी। तो अभी दो वो तीन बार लिंक आ आई नहीं है मेरे पा रही पास। थी और आप आ रहे थे बार बार। तो मैं उनको समझा रही थी कि आपने ऐसे आना है, और आप आते जा रहे थे। तो मैं इसलिए थोड़ी सी वो पजल हो गई थी कि भाई ये क्या चल रहा है। तो इसलिए जो ना ये सब कुछ हुआ। खैर, आप मुझे अब ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि मिस मरियम मिस गुलशान की नहीं, मिस गुलशान मिस मरियम की जो है वो टीचर है? ये सीक्रेट कैसे रिवील हुआ है? ये दोनों एक दूसरे के टीचर हैं। ये इंटरव्यू कर रहे थे, मैंने इनका इंटरव्यू देखा था। तो इंटरव्यू कर रहे थे, मैंने सोचा कैसा इंटरव्यू करते हैं मैं भी देखूं। जब इंटरव्यू देखा तो मुझे मजा आ गया इनकी बातें सुन के। इसी तरह ये सीक्रेट मिस रिवील हो सीरम, गया। मिस सीरम, मेरा तो वो कोई जैसी बात है, एक प्रोफेशनल मैं प्लेटफॉर्म है। सुन रही हूँ आपको और गौर से। मेरा तो ऐसा कोई नहीं था। मुझसे मुझसे जितने भी मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, वो मुझसे हर एक ने पूछा है कि आप कैसे यहाँ तक पहुंची। तो मैंने हमेशा सिर्फ इतना, मैंने तो कभी गांव का नाम भी नहीं लिया, क्योंकि मिस मरियम जो है वो जब भी बात करती है वो अपना नाम, अपना गांव का नाम लाजमी बताती है, करीब वाला। तो मैं सिर्फ अपना, जितना मैंने इंट्रो दिया है, मैंने हमेशा ये कहा कि मैं शाहकोट के एक गांव से ताल्लुक रखती हूँ। और दूसरा, मैं हमेशा यही कहती थी कि मुझे ये इसी इदारे के एक मेंबर है, मुझे उनसे पता चला था, उनसे डिटेल्स ली थी मैंने।
जाहिर सी बात है, एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, वहां पे प्रोफेशनल ही मैं आती तो बेहतर था मेरे लिए भी। और ये मिस मरियम ने खुद ही डिस्क्लोज किया है और बिल्कुल अचानक किया, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था और ना मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि मरियम इस तरह से इसको डिस्क्लोज कर देगी। वो इंटरव्यू के स्टार्ट में उसने डिस्क्लोज कर दिया, और लुबना जो है वो उस वक्त सुन रही थी, उनके तो बकायदा कमेंट तब आए थे ना साथ साथ ही। तो हमने उनके कमेंट्स को बड़ा एंजॉय किया बहरहाल, लेकिन ये मरियम ने खुद डिस्क्लोज किया था कि जब इंटरव्यू इन्होंने मेरा लिया है तो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली मुझे ये लगता है कि आप जिस गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं ना, तो आपको उसकी स्पेशलिटी, या अगर वो गेस्ट आपके लिए कितना स्पेशल है, आपको ज़रूर वो ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है जितने भी मेरे गेस्ट होते हैं, उनकी जो भी एक स्पेशल रिलेशन हो, या जिस तरह से भी मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ, मैं लाजमी वो एक बात उनकी या उनकी करेक्टरिस्टिक जो कि उनकी अपनी एक्सपर्टीज या स्पेशलिज है, या फिर जो मेरे लिए वो जितना स्पेशल है, मैं वो लाजमी इंट्रोड्यूस कराती हूँ। सो मैंने जैसे कि बताया कि इनके इंटरव्यू डिले करने की रीज़न ही ये थी कि मुझे पता था कि मैं ये लाजमी बोलूँगी, तो मैं तभी बोलूँ जब ये ऑलमोस्ट बिल्कुल हमारा ये जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो एंडिंग की तरफ जा रहा हो, ताकि आप लोगों में से अगर कोई सुने भी तो वो ज़्यादा जजमेंटल होकर फिर सुन सके कि पूरे इस टाइम में कैसा रहा मेरा बिहेवियर, और थ्रू आउट द क्लास कैसे रही, और फिर अगर आप ये किसी को पता चल रहा है तो उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है सारी ट्रेनिंग पे। So that was the only intention I have. ओके जी पार्टिसिपेंट्स, वी हैव अ वेरी वंडरफुल वीकेंड अहेड। हमारे पास बहुत ही अच्छा वीकेंड है। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन के साथ बहुत अच्छा से वीकेंड गुजारिए, और प्लीज़ मेरे टास्क कंप्लीट कीजिएगा ताकि हम टाइमली मैनर में चीज़ों को वाइंड अप करें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। विल सी यू ऑन मंडे। हैव अ वेरी वंडरफुल वीकेंड। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।